What's up everybody? चलिए शुरू करें। पहन के लौड़े ऐसे क्या कुछ भी ओए हिंदुस्तानी मैं कह रही हूँ चल So 2020 has been a shit of a year with all the negatives. Almost 2 decades later, the outbreak of a new coronavirus, named by the WHO as COVID-19, has created a healthcare crisis unseen in a generation. साथियों, पिछले 2 दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। Hey man, I have no idea what you said about me because I personally haven't seen it yet. All I know is a bunch of people are tweeting me, say that you were talking about me. I really hope that's not true because if it's true, oh man, we're gonna have to expose another snake. I doxed him. What are you gonna do about it? Attica has lost his mind. I'm telling you right now. What do you think is gonna happen? Possible not to laugh at that. This dude's address. Do you touch kids? People need to know where this dude lives. Towards the end of your video, you act like a victim, like, oh, the big bad Keemstar has been after me forever and it's had a huge toll on my mental health. You said, thank God I have the support group around me. Well, I have a support group around me and I can't wait for you to see them because they're really pissed off at that video you uploaded for multiple goddamn reasons. Good luck, Ethan, because you're gonna fucking need it. I'm a person that believes in revenge. I think if someone fucks you over in any shape or form, destroy him, destroy him, destroy him, destroy him, destroy him, destroy him, destroy him. What is up, Drum Alert Nation? I'm your host, Keemstar. Recently, I have been under attack by a very, very angry man known as Ethan Klein. Keemstar responded, and what I didn't expect is for him to renew his attacks on Tony. Years later, why were people suddenly starting to troll Tony or Glory and Gold? Well, because every streamer has trolls. But actually, there's something else that Tony doesn't want you to know about. He was involved in his own scandal. After all he's put this man through, and he's coming back to do it again. Now listen, I'm not gonna tell anybody the catfish story. Tony, that is for you to tell. You gotta tell people why individuals years later after this incident would be in your chat calling you the P word, all right? You gotta explain that story. You gotta tell that story. I'm not gonna tell anyone. I wronged you in the past. The least I could do is give you a pass and not explain that catfish story. Keemstar says it's Tony's story to tell, but he can't help himself. People are not taking the bait, and so he pushes it further on Twitter. Please, RS Glory and Gold, come clean on the catfish story. Stop blaming me for the hate you've gotten over the last few years. Alright, so I did it. And I've tried my best to grow up and to be a better person. And first and foremost, I want everyone to know that I've always been a two-way street. And that any time that you criticize me and tell me that you would like me to do better or to do something differently, that I always try to do that. It's true! Oh my God! Allegedly, it's true. We've been telling you this for a while. People think that Jeffree Star and Shane Dawson were the masterminds behind Toddy Westbrook making that video back in May of 2019 that canceled James Charles. And this morning, a brand new news article came out on Shane Dawson, and well, it's not looking good because TubeFilter is reporting this. YouTube has suspended all ads on all 3 of Shane Dawson's channel. Whoa! That is big. Trust me, I know from experience. Might be a huge lawsuit coming up. And on top of all of this, people are speaking up against Shane Dawson and Jeffree Star in a way that's putting everything that happened in 2019 in a completely different light. So in this video, we're going to take a look at what all of that means from a legal perspective, as well as for the online environment. Good evening and welcome. Let's take a look at our top story this hour. Mike Pompeo, United States Secretary of State, has supported India's decision to ban Chinese applications on mobile phones. Mike Pompeo said that India's decision will boost its security and sovereignty.
The US Secretary of State has also said that India has taken the right decision. But the Floyd name still lives on. George Floyd, you are gone but not forgotten. Because of you, we've come together. This is for George Floyd. It's so late to be angry. I'm psyched about it. I want to go know about it. I want to read about it. So I went to the most authentic source of news on the internet. कोरा वहाँ पे किसी ने निबंध लिख रखा है. This Shivaji statue is amazing masterstroke by our Prime Minister Modi ji. It will have solar cells which will power all of Maharashtra. दूसरा बंदा है उसने सोचा ये creativity contest है. और ये जो लड़की है ना अग्रिमा जोश हुआ तो तेरी बहन को तो तेरी माँ पे लगता है ओबामा चढ़ेला. फनी अबाउट इट. फनी अबाउट इट. फनी कब होगा पता है जब इंग्लिश में तेरे को बोलता हूँ मैं कि व्हेन आई विल फक यू फ्रॉम बिहाइंड यू नो सपेरा शॉट लाइक अ स्नेक विल गो लाइक स्नेक यू नो फ्रॉम योर आर्टरीज पैंक्रियाज एंड कम आउट फ्रॉम योर माउथ. दैट विल बी सो फनी. पर बात क्या है मैं तो वो लड़की को जानता भी नहीं था. ये अग्रिमा जो जोशुआ जिसने वो किया ना इसको मैं जानता भी नहीं था. पहली बार देखा है मैंने. अब करो मेरे पे कॉमेडी. मेरा वीडियो दिखा के करो कॉमेडी. कैसा कर पाओगे? इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में पबजी के साथ साथ उसको टोटल 118 और ऐप्स को बैन कर दिया है. पबजी बैन की बातें मतलब पिछले काफी दिन चल रही थी और मतलब बहुत बार था कि भैया पबजी बैन होगा नहीं होगा हो सकता है या जो भी है. तो फाइल दोस्तों अभी 2 सितंबर की आज की ये प्रेस रिलीज फिलहाल आपके सामने है जहाँ पे पूरी डिटेल्ड लिस्ट है 118 ऐप्स की जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया है. ये तुम्हारे बाप ने बंद किया है. बाप ने. थम्स अप. सत्यमेव जयते रिया चक्रवर्ती. सत्यमेव जयते दिखा दी ना टीम को. पूरी दुनिया को गणेश दिखा दी कि तक के साथ पूरी डीलिंग हो गई. पूरी सत्यमेव जयते. ये ड्रगी है. क्या बोलते हैं उसको? ये ड्रगी है. हाँ प्रशांत ये गंजड़ी है. ये चड़सी है. ये ड्रगी है. प्रमाण दिखाओ मुझे. आप कैसे लड़ रहे हैं? प्रमाण दिखाओ मुझे. प्रमाण दिखाओ. प्रमाण मैं दिखाता हूँ. प्रमाण मेरे पास है और प्रमाण ये है कि रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप कन्वर्सेशन मेरे पास है. अरे रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो मुझे ड्रग दो. वो कहती है मुझे ड्रग दो. मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, MDMA लाओ, एक्सटेसी लाओ. अरे वहाँ पे प्रमाण है इसके पास. अरे ड्रगी कौन? रिया चक्रवर्ती ड्रगी है. वो कैसे कह रही है? Holy jeez, holy moly. Fortnite banned. It all started yesterday. The news broke. You sent me a message. You said you're not going to believe what just happened. You said, we got a lot to talk about. You said, I got so many words. I got so many takes. I said, Will, that's not like you. Yes. But then I followed it up and I said, you know, whatever you got to say to the world, then we're going to make some space for you tomorrow. We're going to let you air it out. Whatever it happens to be. And your opportunities right now. Well, you can go ahead first. Really. Apple ban sparks court action from Epic Games. We heard the news first on the iOS side. I'm gonna get to the Android side on the next article because they are quite different. A sight like no other has unfolded at border points by Delhi in India, where tens of thousands of farmers are peacefully protesting against 3 farming reform bills. These bills were passed into law by Prime Minister Narendra Modi's ruling party in September. Farmers say the bills will leave them vulnerable to corporations and will devastate their livelihoods. The political side is that this government has been very autocratic in the way in which it has pushed through big reforms. And I should say that on the agricultural side, these reforms that they put through in September, there were a lot of economists and others who felt that there had to be some reforms to the agricultural system. Whether these were designed properly or not is a question. 60% of India's population works in the agriculture sector, but only represents about 15% of India's GDP, with the majority being small-scale farmers.
Most protesters are from the states of Punjab and Haryana, which are considered India's breadbasket. But farmers from across the country have joined the protests. However, the demonstrations turned violent when the government used military tactics to clamp down on the dissent it was receiving from the frustrated farmers. Protesters have been met with water cannons along with tear gas, concrete barricades, and some were even beaten with batons. Despite the agitation from the government, farmers remain strong in their resolve to see the bills repealed. बेशक लगातार पवे 6 महीने रहना पवे ये सब तो उठ के जाने वाली नहीं। इंटरनेशनली ये चीज़ साबित हो चुकी है, जो इंडियन कारपोरेट्स हैं वो आप बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, लेकिन जो मध्यम वर्ग है या फिर गरीब वर्ग है और ज़्यादा गरीबी में जा रहा है। हम किसान बन के हैं, खालसा होंगे, हमारा इसमें हमारा कोई और रोल नहीं, सिर्फ किसानी का मुद्दा। The bills allow farmers to sell their produce outside government-controlled agricultural markets called mandis, which ensured prices wouldn't get too high. They also curtail farmers' ability to challenge contract disputes in court. The bills mark an end to a decades-old system guaranteeing minimum support prices for staple crops called an MSP. With the entry of the corporate, private players into this agriculture procurement and also agricultural production, what we can see is that they will have complete control over what people produce and how much they will pay back to the producers. An additional concern is that these bills were passed without stakeholders being consulted or deliberation from the opposition. आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। एक बारी दस दे जरा दिल वाले पूछ देने चा। गोबर जोन का कोई नाम नहीं लेता, ऐसा क्यों होता है यार? ही इज वन ऑफ द वेरी फ्यू कंटेंट बेस्ड ब्लॉगर्स इन इंडिया। इंडिया में जो कंटेंट बेस्ड ब्लॉगर हैं वो बहुत चुनिंदा से हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो मेरे जो मोस्टली ब्लॉगिंग है वो कंटेंट बेस्ड ब्लॉगिंग रहती है, जैसे कि भूत ढूंढना, कुछ प्रैंक हो गया या कुछ खरीदना या कुछ एक्टिविटी करते, कंटेंट बेस्ड रहता है, ठीक है यार। लेकिन हमारे गोबर जोन भाई को इतना हेट क्यों मिलता है यार? ही इज वन ऑफ द मोस्ट हम्बल पीपल आई हैव सीन ऑन द इंटरनेट। वो कभी भी किसी चीज का शो ऑफ नहीं करते। ओह नाखून नहीं, इस पे नाखून नहीं। गुची की ड्रेस है बड़े भाई, गुची की। इट वाज अ इंपल्सिव डिसीजन। मैं और भी कुछ कर सकता था, पर मैंने फिर उसको चाटा लगा दिया। ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ, सुन मेरी बात, it's her choice, yeah, fucking right, nobody gives you the right to slap a girl, and that was strong. It's like we're almost like blaming them for being born in a family, which is not right. I think everybody has their own struggle, सबका struggle अलग है। डिफरेंस ये है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहीं का struggle शुरू होता है। अगर इसको कोई देश से निकालने की बात करेगा ना तो सामने गोली खाऊंगा, बहन की चूत। Namaste, namaste, and hello to India. This is such a great honor, and today India welcomes us at the world's largest cricket stadium right here in Ahmedabad. It is as the great religious teacher Swami Vivekanand once said. चीजें रुक गई, लेकिन आप नहीं रुकोगे। रेस्टोरेंट पब वाले टेंशन में थे कि सबसे पहले उनका धंधा बंद होगा या इनकी दुकानों के बाहर लाइनें लगी हुई। 11 बजे तक बंद होने वाले रेस्टोरेंट 2-2 बजे तक खुले हुए हैं। अरे निब्बा निब्बियो, अरे निब्बा निब्बियो, एक बाइट आइसक्रीम खाने से प्यार जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन प्यार करने के लिए बचोगे तब ना। What's that? We're getting breaking news. iDubbbz
It's a simp? No! That's impossible! I don't think I've seen the internet collectively lose their mind over something in a very long time. आजकल recently in the news काफी चीजें पनप रही हैं, especially this word. Apparently this is the new trend. अब लोग simp बोल रहे हैं, which is fine. I don't give a shit. It's a good meme. Everybody has fun, okay? And when the simp meme was popping, our king, our lord, our savior, he lost his throne. And अगर तुम लोग wonder कर रहे हो कि ये king, ये lord, ये है कौन? It is iDubbbz everybody. 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। आप सभी ने जिस प्रकार अनुशासन और सेवा भाव दोनों का परिचय दिया है वो अभूतपूर्व है। क्रिंज कंटेंट के साथ साथ टिकटॉक ने फैलाई खूब वल्गैरिटी। क्रिंज कंटेंट के साथ साथ टिकटॉक ने फैलाई खूब वल्गैरिटी और गवर्नमेंट ने दिया बस एक ही तमाचा और For a guy that is in a relationship to be interested in other girls, that's just cheating. But if a girl who's in a relationship becomes interested in another guy, it often means that she's not getting what she needs to get from that relationship. तो अगली न्यूज आ रही है मुंबईकर निखिल उर्फ कन्हैया नाइस्टैट की तरफ से। मैं मेरी माँ के लिए जी रहा हूँ कि ओरिजिनल राइटर मुंबईकर निखिल लॉकडाउन होने के बावजूद भी गवर्नमेंट की एक ना सुनते हुए अपने घर से बाहर निकले सिर्फ माँ का खाना खाने के लिए। बहुत ज्यादा खुश हूँ बिकॉज़ आज मैं फाइनली जाऊंगा अपनी मम्मी के घर पे खाना खाने के लिए। लेकिन अगर बाहर सरकार ने लॉकडाउन लगा भी दिया तो इसमें निखिल की क्या गलती है? निखिल तो ब्लॉगर है ना, वो तो बाहर जाएगा ही। इसी के लिए निखिल को कमेंट सेक्शन में बहुत हेट मिली और बहुत लोग कह रहे थे कि निखिल बहुत बड़ा चूतिया है। लेकिन पता नहीं तुम लोग इतना हेट क्यों करते हो उसे। तुम लोग वैसे निखिल को नहीं समझ सकते जैसा कि मैं समझता हूँ। मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। और गाइस जैसा कि आपको पता है, I'm assuming कि आपको पता है मेरे पास बाहर जाके शूट करने की परमिशन है। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम लोग इतना हेट क्यों करते हो उसको? उसने शुरू में ही बता दी उस पर बाहर जाने का परमिट है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा ब्लॉगिंग कब से इमरजेंसी में आने लग गई। इसलिए मैंने अपना कोविड 19 का टेस्ट भी कराया था, तो बी ऑन अ वेरी सेफर साइड। बाहर वीडियो शूट करने के लिए सरकार परमिट दे रही है, इससे ओरिजिनल बहाना नहीं मिला निखिल। आप अपना आईफोन थोड़ा बहुत शूट कर लेंगे रास्ते का और मेरे को दे दोगे? यस सर। तो सुरन पाजी ने मुझे वीडियो भेज दी है, लैपटॉप में डाल के प्ले करता हूँ। निखिल बोलता है कि उसको बाहर जाने का परमिट है, फिर कहता है यार दोस्त रिकॉर्ड कर देगा फुटेज, वो देख लेना। चलो ठीक है, मर्जी है, तू दोस्त से रिकॉर्ड करवा रहा है, ठीक है, दोस्त ने रिकॉर्ड कर दी, तू बाहर नहीं गया। लेकिन फिर जब वो फुटेज रिव्यू कर रहा होता तो चोर की दाढ़ी में लेंस पकड़ा जाता है और ऑडियंस ऑब्जर्व कर लेती है कि ये फुटेज और किसी ने नहीं, स्वयं का नहीं है, नहीं रिकॉर्ड करी है। यार क्यों इतना झूठ बोलता है यार? वो परमिट है यार, वो डॉक्टर्स को मिलता है। वही डॉक्टर जो पेशेंट को देखने आते हैं हॉस्पिटल में, वही पेशेंट जो तेरे ब्लॉग देखने। जैसा मैंने बताया था एग्जैक्टली वैसा ही शूट किया। थोड़ा बहुत और शूट कर सकते थे बट चलो ठीक है। कमेंट सेक्शन में बहुत डिसअपॉइंटेड थे और होना भी चाहिए यार। क्या हो गया यार निखिल, तेरे को क्या करता फिर रहे तू आजकल? कदे ना हारदे ओ फीलिंग पर हाउंड इंडियन आर्मी
pants. Dude, let the heat blast. You smoke like my tree said. Catch 3, watch his teeth crack. G slide through, you need a helicopter evac. बंदे को मैंने पिछली वीडियो में इतनी इज्जत के साथ रोस्ट किया था, गाली वाली कुछ नहीं बकी थी, उसके बावजूद भी इसने मुझे ब्लॉक कर दिया इंस्टाग्राम पे। लेकिन कैरी ने इसकी इतनी गंदी मारी, वो भी बिना तेल लगा के, उसको तब भी स्वाइप अप दे दिया। और ये क्या मतलब है बीयू नहीं खर्च नहीं वाला असिस्टेंट चलाने को टैग करने का? लक्ष्य भी तुझे जानता नहीं था, पर लोडू सबसे पहले लक्ष्य को ही तूने अपने IGTV में टैग किया था। सुक्के नशे करने छोड़ दे भाई। मैंने और एलविस ने ना तो भाई तेरा रोस्ट किया था, ना ही पूरी वीडियो में रोस्ट वीडियो में तेरा नाम लिया था। उसके बाद हमें टैग कर रही है, अब पूछ रहा कि लक्ष्य बीच में कहाँ से आया। अब सबसे पहले मैं ही आया और तूने बुलाया। पिछली बार ना तेरा रोस्ट हुआ था ना जिक्र, पता ही नहीं तू आया क्या था लेने। पिछली बार ना तेरा रोस्ट हुआ था ना जिक्र, पता ही नहीं तू आया क्या था लेने। लास्ट टाइम तो मैं बस आग लगा के गया था, आज आया हूँ तुझे बटिस्टा बॉम्ब देने। बहन के लोड़े ऐसे क्या बोल रहा है, गांड मार लूंगा तेरी। हट बहन चोद, तेरी गांड मार लूंगा बहन के लोड़े। साले बहन चोद, मैं बता रहा तुझे, सुन ले मेरी बात, सुन ले बहन के लोड़े। भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। तो जितना तुम गालियों पे ध्यान दे रहे हो ना, उतना तो हम देते भी नहीं। और गालियां भी कुल मिलाकर के 8, 10, 15, 20 है, वही चल रही हैं। कुछ भी बोलना हो वही गाली, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत रेगुलर बात है। कारण ये कि उसके पास, उस गधे, उस जानवर के पास शब्द ही नहीं है, उसकी मजबूरी समझो। भाई गधे को पानी चाहिए तो भी क्या बोलेगा, ढेचू। और घास चाहिए तो भी क्या बोलेगा, ढेचू। गधे के सामने शेर आ गया और डर गया तो भी क्या बोलेगा। अब गधे को चूहा दिखाई दे रहा तो भी क्या बोलेगा। तो इस आदमी के पास और कोई शब्द ही नहीं है, जो कुछ भी इसके सामने आ रहा है उसको। चलो बेटा, कैरी देखो रोज सिखाए। ध्यान से देखिए इस दरिंदे को, इसका नाम है कैरी मिनाटी। ये यूट्यूब को यूट्यूब बोलता है और सस्ते नशे करने वाले हरामखोर जैसी लाइनों को जोक। कैरी मिनाटी के हिसाब से मोटे को मोटा ना बुलाया जाए, पतले को पतला ना बुलाया जाए, गोरे को गोरा ना बुलाया जाए, काले को काला ना बुलाया जाए तो क्या बुलाया जाए। पर अगर साइबर बुलिंग को साइबर बुलिंग बुलाई जाए तो कैरी मिनाटी बोल रहे हैं वो हो गए हैं अपसेट, वो हो गए हैं दुखी। ऐसे ना एक बार कैरी के पापा रूम में आ गए और कैरी मूठ मार रहा था। पापा ने छाती पे हाथ रख के बोला, थैंक गॉड एटलीस्ट हमारा बेटा किसी को बेटी बुला के पैसे तो नहीं कमा रहा है। कुछ टिकटॉक की बेटियां, और ये बेटी 6 साल मॉस्को पढ़ के आई है। बेटी जिंदगी लूनी टून नहीं, बेटी तेरे शब्द अदल बदल, बेटी ये गली क्रिकेट नहीं है, बेटी जबरदस्ती भगवान का बंदा मत बन। कैरी अगर तू एक रेगिस्तान में अकेला होता और वहाँ एक कुत्ता आ जाता तो एक कुत्ता पौधा लगाता, उसका पेड़ होने का वेट करता और फिर उस पेड़ पे मूतता। तेरा कंटेंट कुत्ते की मौत भी करंटली डिजर्व नहीं करता। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, इनका ही गाना साया वीडियो के रखे पूरे लिए। अजी लंड मेरा हूँ, इंग्लिश में गाली देने वाले लगते कूल, हिंदी में देने वाले लगते इन्हें फूल। फूल से भरा देख मेरा पूल, तो मैं हो गए आगे प्रिंसिपल, मैं हूँ पूरा। में क्यों इनको जीना नहीं, विक्टिम कार्ड प्ले करके खून पीना सही। रीच 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 इनको चाहिए रीच, प्लीज 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 सामने करते प्लीज। बीट 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 इनको करूंगा बीट, हीट 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 मेरा कंटेंट है हीट। मैंने ही मिटानी ये बीमारी, मैंने ही तो जानी ये बेईमानी, मैंने ही मिटानी भ्रष्टाचारी, मैंने ही संभाली जिम्मेदारी। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर। इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर। Let's go। गांडू
था ये यलगार या भंगार, अधूरी कहानी है नो बार्स, जैसे बिन कुर्ते के तूने पहना हो सलवार। ना मैं कामरा ना राठी ना मैं साइमन सेज, बट लगता रोस्ट के भगवान को भी है प्रॉब्लम विद गेज। ला मुझे तोड़ तेरा खून मेरे हथौड़े पे, कैरी मेरा बाप भक्त सब है मेरे लोड़े पे। बड़ूकर्स भैया कैरी पापा ने लोस्टिंग चालू किया, नो टीवी ने किया और इन लबड़ों ने हक दिया। अपनी ऑडियंस जैसे लौंडों का मजाक बना के फेम पाया, अब उसी ऑडियंस ने कैरी को अपना गुलाम बनाया। तो कैसे हैं आप लोग मार्केट में आए बाप लोग, हेटर्स की चली रूट तक आओ तुम भी व्यूज छाप। Ladies and gentlemen, more than 130 crore Indians, when we stand behind the government of India, believe me viewers, nobody. Reason 2 viewers, my second word I used to, suddenness. The sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move. The fact that there was no warning to the Chinese. The sheer suddenness of the move. The unexpected nature of the move. The unpredictability of the move. The fact that there was no warning to the Chinese. नमस्कार विनोदों, मेरा नाम है विनोद, आप देख रहे हैं विनोद, तो चलिए विनोद करते हैं। मेरा नाम है विनोद, आप देख रहे हैं विनोद, तो चलिए विनोद। I think Vinod had turned into a movement here. इसकी पूरी शुरुआत हुई हमारी एक गलती से, जब 3 हफ्ते पहले हमने दुनिया को मिलाया एक हीरे से। ऐसे एक वीडियो देख के विनोद थरू बोले विनोद, बस विनोद। 7 लोग इस कमेंट की विनोदता से इंप्रेस हो गए। Binod. What does Binod people keep saying? What does that mean? What the hell is Binod? What is this? Why is everyone spamming it? विनोद। Who is Binod? कौन है विनोद? विनोद कौन है? विनोद कौन है? जो विनोद ओपी चल रहा है ना, वो है कौन ये बंदा? लेकिन इतना फेमस सिर्फ विनोद इसी तरीके से आ रहा है। कोई मुझे प्लीज बताएगा ये विनोद का क्या सीन है? विनोद कौन है? विनोद तल्ला है। कौन है विनोद? थाले तले घर में घुस के मालूम है हु इज द विनोद। बस क्या लव यू ना। विनोद कौन है बे? कौन है ये विनोद? What the hell is this Binod? What the hell is Google Binod? Is it an acronym? Can I define the acronym right now? Live, without even thinking about it. Should we put Binod in the chat as a banned word? I don't know, man. I'm not getting, let's just say I'm not getting anything from it. But at the same time, I don't want to dismiss like a popular meme. I mean, how can we capitalize on it, huh? Is it a meme? Or is it a meme? A meme? Incredible. It goes on my computer wallpaper. Yeah. It's a goddamn big deal. Binod? What the hell is Binod? Stop it! Am I getting raided? What the fuck is Binod? I don't speak Taiwanese. I don't take kindly to motherfuckers coming in my chat, spamming all Taiwanese shit in my chat. Shut the fuck up, Binod. Shut the fuck up. I don't want your cock and ball torture. Binod. Is that what it stands for? Balls in... There's nothing on N. Never mind. विनोद आ गया। विनोद आ गया। क्या? विनोद आ गया। विनोद सुनो, क्या खेलोगे तुम उनो। विनोद सुनो, क्या खेलोगे तुम उनो।
में रोस्ट भी नहीं हुआ। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। मोहल्ले में कोई बबलू होता है तो लगता है कोई अपना है, भरोसा है, कोई है, भरोसा है, कोई है। बबलू नाम का कोई अपराध की दुनिया में चला जाए तो पूरा डब्लू हो जाता है मामला। तो डब्लू से वांटेड हो गया बबलू। हैप्पी, विक्की, डिकी नामों के चर्चित होने से पहले पप्पू और बबलू ही प्यारे नाम माने जाते। पप्पू और बबलू ही प्यारे नाम माने जाते। बबलू 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 भाग गया है देखो बबलू, जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो। 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, बबलू निकल कर भागा, बबलू निकल कर भागा। बबलू 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 भाग गया है देखो बबलू, जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो। 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, बबलू निकल कर भागा, बबलू निकल कर भागा। Hi everyone, I hope you're doing well. This video is to address recent comments and criticisms that I've received. I know this video is long overdue and I planned a vacation for around this time, but I honestly should not have taken any time off prior to acknowledging or addressing or apologizing for these things. Not only that, but I should have properly apologized when the incident actually occurred. It shouldn't have taken me this long to come to a proper understanding of how to handle these situations. Pokimane has been in the news a lot in recent months. One of the top 10 streamers on Twitch, and by a landslide the biggest female streamer on the platform, has within the span of about a year gone from someone whose brand was synonymous with wholesome, unproblematic content to probably one of the most criticized content creators at the moment. There's many aspects to this topic. There's the excessive copyright claiming, the mustering of an army of so-called simps to go on the offense for her, the seemingly delusional statements, and many more nuances that add up to paint a picture that has drawn a lot of backlash against her on YouTube. But what started with Pokimane seems to have reached a boiling point, and despite the poop storm that this caused for her, even prompting an apology video, she still stood behind her decision while disingenuously apologizing to escape the backlash. Although I was legally within my right to take down the video, morally and as a content creator, it wasn't something that I should have done because I mean, at the end of the day, those were tweets that me and Keem made publicly and videos that we made publicly. So I totally apologize for that. Sometime later, during a podcast, Pokimane expanded on this topic. And even from the way she talks about it over there, she seems to only be sorry because she got called out and not at all for the action itself. And I had spoken to my MCN and I was like, is this something that I can take down? Maybe if we like kill this, because Keem had deleted his tweets already. And I was like, I just want this whole drama to be over. Yeah. And I made not the right call, in hindsight, to have that video removed. I just didn't want to be in like all this drama and I wanted it to like pass. I think the only way people like this stop is if people like me and my community give them feedback that this is not an okay thing to do. Not attack them, but I hit a little dislike and I say, this not cool. And you guys, that's just how I am with content. I love something, I say good one. And I hit it with a like. And if you think something is not okay and you want to see less of it, you also have to give feedback because that's how YouTubers work. If they're not going to work off of morals, they're going to work off of dislikes and comments and whatever.
Leafy is here on the line. Leafy, I was talking to you yesterday on the phone about something completely different. You said you were off to bed. 30 minutes later, your channel gets terminated off of YouTube. When did you wake up? When did you find out? Tell us the story on how you found out that this went down. I went to bed and I was having a good night. 8 hours later, I wake up from a text message from you saying your channel got banned or suspended or whatnot. And I mean, that was a sick thing to wake up to. Donkey, how is it looking? Oh, this is the... ओ भाई माय इनिशियल रिएक्शन जैसे मेरे को डब्बा मिला, पापा मेरे को कॉल करके बोले गोल्डन प्ले बटन आ चुका है। कॉल करके नहीं, ही टेक्स्टेड मी एंड एक फोटो भेजा। उसमें उतना बड़ा नहीं दिख रहा था एंड फोटोज में भी उतना बड़ा नहीं दिखता है, बट इन रियल लाइफ दिस इज ह्यूज। आई एम टेलिंग यू, बहुत बड़ा है। सिल्वर तो आ गया, नहीं आने दूंगा गोल्ड प्ले। नमस्कार, हाय मैं संजू। नहीं मैं तो डुप्लीकेट क्लोन, वाइड स्क्रीन नहीं मेरा पोर्ट्रेट मोड ऑन। मक्कीवेली रांट रेनेसांस लाया कौन, अब सब मुंह चलाए जैसे C4 सब बॉम्ब। सनी पाजी हूँ 2.5 किलो का, हाथ देखा धर्म पे बोला तो मारूंगा बहुत बेटा। तो हिंदुस्तानी भाव का जो इंस्टाग्राम अकाउंट था जिसमें 3.3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे, उनका वो अकाउंट अब डिलीट हो चुका है। तो बेसिकली हिंदुस्तानी भाव का जो अकाउंट है वो मास रिपोर्टिंग की वजह से डिलीट हुआ है। जी हाँ, क्योंकि जिन जिन लोगों ने भी हिंदुस्तानी भाव का अकाउंट को रिपोर्ट किया था, उनको जो है अभी एक नोटिफिकेशन आ रहा है इंस्टाग्राम की तरफ से। अरे कोरोना जा तेरी माँ ना किधर तो जाके तेरी माँ का मारू तेरी जाना, वो सांप खाया उन में आना कोंडा बन के घुस जाना तेरा, तुम्हारी माँ का तुम्हारी क्या साला बच्चा कोरोना हट तेरी माँ की तेरी जो इसमें आया। जैसे हिट है जिमड़े ले जाए बिल्लो बड़े बड़े फिट है। कैरी मिनाटी के रोस्ट जैसे हिट है जिमड़े ले जाए बिल्लो बड़े बड़े फिट है। एक मिनट मेरी बात सुनो। लगी है सॉरी माँ, लगी है रिया चक्रवर्ती, लगी है रिया सॉरी माँ, लगी है रिया चक्रवर्ती, लगी है सॉरी माँ, रिया चलिए शुरू करते हैं फैक्ट्स रिप्रेजेंट। जैसे इंडिया का इनकम बाहर किया स्पेंड, सोच काफी छोटी ऑडियंस बड़ी वाइड, थर्ड क्लास कंटेंट फर्स्ट क्लास फ्लाइट, मेड इन चाइना को हाथ से छुपाकर मैं करता प्रमोट, मेरे वर्ड्स का कोई वर्थ नहीं। टिकटॉक से हिट करूं, न्यूज ट्रांसलेट करूं, गिव अवे के नाम पे हमेशा क्लिक बेट करूं, हेडलाइंस पढ़कर रोल्स रॉयस ले ली। एक कहानी मुझे सबको बतानी है, वाइट चेक्स के साथ फोटोज भी खिंचानी है, क्वालिटी छोड़ क्वांटिटी पे मेरा ध्यान है, टेक्स्ट से ज्यादा मुझको कॉमेडी का ज्ञान है, एनफेस पे हगा जैसे DMC, मैं तोड़ू तेरी ईगो जैसे BMC। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल क्रू जी, और आप लोग देख सकते हैं मेरे पास जो ये ओप्पो का डिवाइस है, आप देख सकते हैं ओप्पो का फोन है मेरे हाथ में। ये एक चाइनीज कंपनी है, तो मैं इसका बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं करूंगा। आप कुछ भी बोल रहा, मैंने इसका थोड़ा सा भी प्रमोशन नहीं करना है, क्योंकि ये चाइनीज है। ये ओप्पो का ब्रांड न्यू फोन जो आप अभी amazon.com से इन पे सब्स का इनका है मौज। खुद सोचो ज्ञान कितना बांटते हैं रोज, लेट नहीं ये दिन में 2 अपलोड, टैक्स मत दे बस देशभक्ति चोद, गॉड करे खुद को सब जानते तू है। Someone who's not very religious, I think this whole attack on Chris Pratt for being a Christian is pretty ridiculous. So Chris made a poll where people could vote on who is the worst Chris. You know, the worst one within Hollywood. So the options were Pine, Hemsworth, Evans, and Pratt. And Chris Pratt was voted the worst. Which is why it might be surprising for some people to learn that a large swath of the internet wants to cancel Pratt after he was voted the worst Hollywood Chris by Twitter. Netflix is absolutely disgusting. There's nothing they can say or do that would justify what they're doing right now. 2020 was terrible so far, but this is kicking it up a notch, like without a doubt. The fact that this was approved by an entire team working on it constantly for months, maybe even a year, approved by the parents of these children, by the producers, by the writers, by Netflix themselves, this is insanity. Biggest fan fest of all time. Biggest fan fest in the history of fan fest. Without further ado, let's start the show and kick off Fan Fest India!
bunch of amazing ladies yet to come. We have mostly seen. कभी किसी लड़की से पिटे हैं? मेरा बहुत लंबा है क्या? करियर बहुत लंबा है। मूवी वगैरह को देखा है, स्टेज पे जाते हैं गिटार पकड़ के हिला देते हैं पूरा। अबे तू टेंशन मत ले, मैं बिना गिटार पकड़े हिला दूंगा। हिलाने में तो मैं बचपन से एक्सपर्ट हूँ। ऑडियंस हिलाने बेटा, ऑडियंस। Hi everyone, this is me Niharika Singh aka Captainik. I'm also your host for YouTube FanFest India 2020. Lovely, so I'm going to go ahead and talk about love, which is like an emotional feeling. Why? Let's talk about how we say I love you in different languages. Now I know I love you in 5 different languages. That's English, Hindi, Tamil, Telugu and Bangla. And I'm going to say this to everyone whom I meet. इसे आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। Extended lockdown in India has altered the lives of millions, especially the millennials who are not able to go out as before and socialize and date and you know what, this stay-home situation has given birth to a new series of content based on virtual dating etiquettes, managing heartbreaks, breakups, you know, relationships and all those things. So let's see some of this content and get entertained together. आप रोते भी हो? क्योंकि लड़कों को मतलब हमारे And welcome back to Apple Park. I am so glad you could join us today. Just last month, we were here to introduce some great new products. Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, as well as the 8th generation iPad, and the all-new iPad Air. And we've got some more huge announcements for you today. Instead of the heavier lens, to precisely control motion in X and Y while maintaining sharpness. This cancels both low and high-frequency disturbances like hand movement or vibrations in a car. 30 साल की ऐसी बुजुर्ग दंपत्ति से जो कि पिछले 30 सालों से साथ में काम कर रहे हैं। एक और वीडियो बनाऊंगा और अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने इनको डोनेट किया। जितना भी अमाउंट आएगा, सारा अमाउंट हम इनको डोनेट करेंगे आपके जरिए। इनका पैसा इनका ही है और इनको हम जरूर लेके जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी स्पेकुलेशन आ रही है मीडिया पे और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई गौरव भाई ने बाबा के पैसे नहीं दिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पैसा इनके लिए आया था सिर्फ इन्हीं का ही था और मैंने बाबा को श्योरिटी दी थी, बाबा आपके पैसे मेरे पास फुल टाइम सामने, आपको जब भी चाहिए हो मुझे बस फोन कर देना। और बाबा का फोन आया और बाबा ने बोला भाई मेरे को जरूरत है, तो देखो मैं चेक लेके आ गया। बाबा आपके नाम पे लोगों ने भेजे हैं 2,33,677 रुपए। क्या बात है, थैंक यू सो मच गाइस। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है कि आपने इतना प्यार दिया है बाबा को। इसी तरीके से डोनेट करते रहिएगा और लोगों की मदद करते रहिएगा। बाबा आज से आपका मेरा लेन देन तो नहीं रहा, कोई लेन देन नहीं है यार, ये कभी हो ही नहीं सकती। ऐसा स्माइल करके दिखाओ जरा, या अम्मा आपकी देखो, ये इनका प्यार है, ये मुझे आज भी आशीर्वाद दे रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि मेरी इनसे कोई नाराजगी नहीं है। और जो भी लोग मेरे को नीचे गिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई ऐसा मत करो। थैंक यू भाई। मतलब इनके अकाउंट में ही 20 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट आ चुका है और उसके बाद हमारे पास भी इनके कुछ फंड्स हैं जिसमें ज्वाइंट अकाउंट खुलवाऊंगा माता जी का और बाबा का, और इनकी FD करा के। कैश में तो पैसा आ गया, ऑनलाइन अभी तक कोई दे गया या नहीं दे गया? नहीं, ऑनलाइन हमारे पास कोई मदद नहीं पहुंची है। जो भी आया कैश आया है। और उसके अलावा हमें गौरव जी ये मना कर दिए थे किसी के अकाउंट नंबर मत दो। दूसरा बाबा, अभी तो गौरव ने पैसे दिए आपको? नहीं सर, अकाउंट में अभी हमारे पास अकाउंट में कोई पैसे नहीं आए, वे गौरव नहीं दिए हैं, ना कैश दिए ना अकाउंट में दिए हैं, अभी उनके पास ही है पैसे। और भाई हमारे पास ना ऑनलाइन फंड अभी तक कहीं से नहीं आया। एक मिलाप ऑर्गेनाइजेशन से हमारी बात चल रही है। हाँ। तो मिलाप वालों ने बोला है वो कर देंगे, उनसे बात चल रही है, उनका भी प्रोसेसिंग में है, जो वही फंड आया है बस, और कोई भी फंड नहीं आया। 2 लाख 35,000 और कुछ रुपए ऐसा जैसे है। अच्छा अंकल जी, और अकाउंट में भी कोई ट्रांसफर करें आपके? हमारे अकाउंट ट्रांसफर कोई नहीं करे, गौरव ने कोई ट्रांसफर नहीं करे ना, उन्होंने। अभी ये जो वीडियो बनाने आया था गौरव, सबसे पहले जो चेक लेके आया था, वो कब की है बात? ये बात 26 तारीख की है। 26 तारीख की मतलब 26 की रात को? 26 में शाम की तारीख है। शाम को कितने बजे? शाम को हमने दिए 6-7 बजे करीब। तो गौरव अजीब सा बिहेव कर रहा था आपके साथ? हाँ जी, हमारे साथ हम तो आए थे, हमारे साथ तो बाकी जो और थे उनके साथ कुछ गलत पेश आए थे, वो थे करण के साथ बुरा करा। नहीं, करण थे, ये गौरव दोनों भाई थे। हाँ। तो शिवशांत के साथ कुछ इन्होंने गलत कदम उठाए। तो आपके काम में मदद करा था बीच में जब आपके ऊपर? हाँ जी, हम तो हमारा लड़का था साथ में। हाँ।
लड़के को भी उठाया गुस्सा हुए थे। और हमारे सामने खैर कोई ऐसी झगड़ा झंडा नहीं है, और हमने सुना था कि करण जैसान को भाई सुशांत के ऊपर हाथ उठा दिया था। अच्छा, हाथ उठाया था। हाँ, मगर सुशांत ने उसको रोक दिया था। उसकी कोई गलती तो नहीं थी ना? पर हाँ, गौरव ने उसको रोक दिया था। पर गौरव के भाई ने हाथ उठाया था ना, जो आपकी मदद करा रहा था। हाँ, सुशांत के ऊपर कोई गलती नहीं थी सुशांत की? नहीं, सुशांत कोई गलती नहीं, सुशांत हमारा काम करवाता है। और एक और बात, अभी बीच में फिर से एक फोटो कॉपी लेके चेक लेके लेने आया था, वो कब की बात है? 26 तारीख की बात है। नहीं, एक और जिसमें वो बोल रहा है कि बाबा हमारा कोई लेन देन नहीं है, वो 26 तारीख की बात है। और एक तो असली चेक लेके आया था और एक फोटो कॉपी लाया था करके जिसमें लिखा हुआ था कॉपी, उसी टाइम फोटो कॉपी करवा करके। हाँ, 26 तारीख को। Hey y'all, come look at this. समाज में हर तरफ पतन हो रहा है, राजनीति, सेंसेक्स, पतन ही पतन। उसी तरह एक बीमारी है, शीघ्र पतन। भैया जी, हम घर आ जाते, आप काहे परेशान हुए? नहीं, ये सब बातें प्राइवेट में ही हो तो बेहतर। वैसे भी पब्लिकली सबके सामने ये सब बातें कहाँ कह पाते मकबूल। तो हम यहाँ से प्ले करेंगे, ठीक है? सुनना अभी ध्यान से, और मैं आपको दिखाता हूँ। जरूर खरीद के लाता हूँ, क्योंकि कलेक्शन बनाता हूँ जगह जगह घूमने की। ये देख रहे हो? हुआ है एक्चुअली ये ड्रोन का शॉट लेने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। कोई बात नहीं, बंदे को ज़रूरत थी तो उसने ले लिया। एक कंटेंट क्रिएटर दूसरे को इतना समझ सकता है, बट मुझे लगता है वो भी चीटिंग ही है। वैसे वो भी कॉपी करना गलत है। इनफैक्ट मुझे एक बार उनको पूछना चाहिए था कि अंकित क्या मैं ये यूज़ कर लूँ? इनफैक्ट मैं मना भी नहीं करता, कहता ले लो, बट उन्होंने नहीं पूछा। ठीक है, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं इनके? 3.38 मिलियन। वाओ, इनको शायद शर्म आई होगी मुझसे पूछने में कि कैसे मैं पूछूँ कि मैं ड्रोन शॉट भी नहीं ले सका इस जगह का, तो उनको शर्म आई होगी। तो अब मेरे को गुस्सा इस बात पर आया इनके ऊपर। मैं शायद ये वीडियो नहीं बनाता क्योंकि मुझे इस टाइप की वीडियोज़ बनाना पसंद नहीं है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो इन्होंने इसके ऊपर ये लगा दिया है वाटर मार्क। ये सारा आपको दिख रहा है, ये वाला जो है ये है वाटर मार्क लगा दिया इन्होंने। और नीचे अपना यहाँ पर ये लगा रखा है, कहाँ गया, ये लगा दिया इन्होंने अपना लोगो। और सबसे बड़ी बात, मतलब इतनी स्टुपिडिटी कोई कैसे कर सकता है मुझे नहीं समझ आ रहा, वो भी इतने सब्सक्राइबर वाला बंदा। ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ लिखा है ड्रीम चेजर। ये ड्रीम चेजर इधर क्लियर खुल के लिखा हुआ है, फिर भी इन भाई साहब ने यहाँ पर गौरव जोन लिख दिया और बिना परमिशन के ये वीडियो मेरा यूज़ कर लिया। मतलब सो कॉल्ड बिग यूट्यूबर्स, बिग इन्फ्लुएंसर्स, मतलब आपकी नज़रों में। अब आप कहोगे कि यार दिखाओ अपनी फुटेज भी। चलो मैं आपको अपनी फुटेज एक्चुअली दिखाता हूँ, जो ओरिजिनल फुटेज है। तो गाइस ये है ओरिजिनल फुटेज जो मैंने आज से 1.5 साल पहले ली थी। कोई मजा नहीं आएगा देखने में, ऐसे देखो तो मजा आएगा। ये मैं म्यूजिक बंद कर देता हूँ क्योंकि फिर मेरे ऊपर ना आ जाए म्यूजिक का क्लेम। तो ये जो फुटेज है ये मेरी ओरिजिनल फुटेज है और यहाँ पर भी आप देखोगे यहाँ ड्रीम चेजर लिखा हुआ है। तो इन भाई साहब ने बिना परमिशन के, और सबसे बड़ी बात जो मुझे इरिटेट करी वो था कि इन्होंने अपना वाटर मार्क लगा दिया। तो चलिए अगली न्यूज़ के बारे में बात करते चुकी है, गौरव जोन एंड ड्रीम चेजर के बारे में। तो ड्रीम चेजर एक दिन पहले अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, गौरव जोन स्टॉल माय ड्रोन फुटेज। इस वीडियो में ड्रीम चेजर बताया कि गौरव जोन जो एक हफ्ते पहले अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए थे, कॉट बाय पुलिस इन मसूरी। इस वीडियो में गौरव जोन ने एक ड्रोन फुटेज यूज किया है, जहाँ पर गौरव जोन ने ड्रीम चेजर का ड्रोन फुटेज को चोरी किया है। जी हाँ, ड्रीम चेजर ने जो इसका प्रूफ भी दिखाया है अपने वीडियो में। तो यार हमें कल से ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि गोबर जोन ने ना आपकी एक वीडियो कॉपी करी है, और मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था चल क्या रहा है। लेकिन फिर मैंने उसकी एक रिसेंट वीडियो देखी ये वाली, एंड मेरे रिएक्शंस इस वीडियो को देखने के बाद ये थे कि गोबर जोन तुम गोबर ही रहोगे। बात ये नहीं थी कि तुमने मेरी वीडियो का कॉन्सेप्ट चुराया है, तुमने मेरे पापा के बोले गए डायलॉग्स, तुमने मेरे बोले हुए डायलॉग्स, इवन मेरा जो सीक्वेंस है ना वो बैठने वाला, मेरे पापा का राइटिंग वाला सीक्वेंस, भाई सब कुछ उठा के डाल दिया, कुछ तो अपना कर लेते। एंड मुझे इस वीडियो को देख करके बस ये लग रहा था कि मेरी वीडियो का एक हगू वाला वर्जन है। गोबर जोन भाई कुछ तो कर लेता उस वीडियो में, एंड इतने सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद यू नो अगर भाई तूने वो वीडियो उठाई थी मेरे से इंस्पायर होकर के, तो भाई तू कहीं क्रेडिट दे देता, मतलब कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में तू लिख देता इंस्पायर्ड बाय UP07 राइटर। बट तुम गोबर जोन हो, मुझे पता है ये एक्सपेक्टेशन तो तुमसे है नहीं, लेकिन तुमने तो हक दिया है। अभी तक बाकी लोग एक्सपोज कर रहे थे तुम्हें, अब हमारी बारी है। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो गोबर जोन। भाई अभी लोगों ने स्पैम करना शुरू भी नहीं किया है और तूने लोगों के कमेंट डिलीट करना शुरू कर दिया है। मतलब ये क्या चल रहा है भाई? देखो बाबा बेटे फेमस हो चुके हो कि आपको गोबर जोन, मतलब यूट्यूब में कुछ लोग हैं गोबर जोन करके, वो आपको कॉपी कर रहे हैं। आप कोई नहीं कॉपी कर रहे हैं, आपके डायलॉग, आपकी एक्टिंग सब कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं बाबा। एक बात तो क्लियर है कि अगर मुझे कॉपी कर रहे हैं, मेरे डायलॉग को कॉपी कर रहे हैं, तो
इतना तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ बात पापा लोग बहुत फैन है आपके लोग, मतलब तबाही तो है। लेकिन देखो भाइयों, जब किसी को भी, मुझको चाहे किसी को भी क्रेडिट आप कॉपी करते हैं तो उसको क्रेडिट देना जरूर बनता है। और कुछ दिनों में जब मैं अभी GT 900 को फिर राइड करूंगा, सुपर बाइक पर राइड करूंगा, तो क्रेडिट जरूर दे देना। बाकी आप सब लोगों को बेस्ट। पिछले कुछ दिनों में हमारी एक कंट्रोवर्सी हो गई थी और वो कंट्रोवर्सी नन अदर देन यूट्यूब के गोबर जोन के साथ हुई थी। और वैसे भी इस बंदे का काम केवल कंट्रोवर्सीज क्रिएट ही करना है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था ये बंदा मेरे साथ भी कभी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है। तो यार बीते 2 दिन हमारे लिए बहुत कंट्रोवर्शियल गए। आप लोगों को पता है मैं कंट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन जब कोई सामने से छेड़ ले रहा हो ना तो फिर हमारी प्रोसी ना उसको नहीं छोड़ती है। एक्चुअली हुआ कि आप लोगों को पता होगा कि 4-5 महीने पहले मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी मेरे डैड के साथ, जिसमें मेरे पापा और मैं KTM पे राइड कर रहे थे और बहुत भयंकर रिएक्शंस आ गए थे। अब एक्चुअली कंट्रोवर्सी क्या हुई कि गोबर जोन ने क्या करा, मेरी जो वीडियो थी ना, उस वीडियो का कॉन्सेप्ट, उस वीडियो का थंबनेल, उस वीडियो के डायलॉग्स, मेरे पापा के बोले गए डायलॉग्स, मेरे बोले गए डायलॉग्स, मेरी राइडिंग का सीक्वेंस, मेरे पापा की राइडिंग का सीक्वेंस, मतलब पूरा आइडिया मेरे से चुराया हुआ था। पूरी वीडियो की स्क्रिप्टिंग मेरे से चुराई हुई थी। इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होने के बाद तुम्हारे पास कंटेंट की इतनी कमी पड़ रही है कि तुम उस बंदे का कंटेंट कॉपी करो जिसके 3 लाख सब्सक्राइबर्स हुए हैं अभी। तो मुझे बहुत ज्यादा शॉकिंग लगा, लेकिन मुझे पता था आफ्टर ऑल ये गोबर जोन है तो कुछ भी कर सकता है। एक्चुअली इसने कोई वीडियो अपलोड करी होगी तो लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे आकर के बताया कि बाबू भैया आपकी ना एक वीडियो कॉपी हुई है। तो मुझे लगा ठीक है यार, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, मैं भी 10 लोगों से इंस्पायर होता हूँ वीडियो बनाने के लिए। लेकिन गाइस एग्जैक्ट कॉपी करना, एग्जैक्ट स्क्रिप्ट कॉपी करना, एग्जैक्ट थंबनेल बनाना, एग्जैक्ट डायलॉग कॉपी करना और उसके बाद तुमने जिस कंटेंट क्रिएटर से वो सब कुछ कॉपी करा है, तुमने उस बंदे को क्रेडिट तक नहीं दिया है। अब एक्चुअली सीन ये हुआ कि मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरी डाली थी कि भाई गोबर जोन ने मेरी वीडियोस कॉपी कर लिया है। तो भाई हमारी प्रोसेने के लोग इतने स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने ना गोबर जोन की वीडियो पे जाकर के स्पैम करना शुरू कर दिया, कंटेंट चोर, ये वीडियो UK07 की है, तूने इससे वीडियो चुराई और तूने इसे क्रेडिट भी नहीं दिया है। गोबर जोन ने शायद सोचा होगा कि मैं इस बंदे की वीडियो उठा लेता हूँ और इसे क्या ही पता लगेगा, और पता लग भी जाएगा तो क्या कर लेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था शायद मेरे 15,000 फॉलोवर नहीं है, ये 15,000 लोग 15 लाख लोगों के बराबर है। इन 15,000 लोगों ने ना गोबर जोन की बिल्कुल ले रखी थी। इन लोगों ने इतना ज्यादा स्पैम कर दिया था ना गोबर जोन को कि भाई UK07 राइडर को क्रेडिट दे दे, ये वीडियो ओरिजिनली उसकी है, तू कॉपी कर रहा है तो प्लीज प्रोवाइड हिम क्रेडिट। और उसकी इतनी फट गई थी कि वो कमेंट डिलीट कर रहा था। और मेरे पास बहुत सारी चीजें गोबर जोन तेरे बारे में बोलने के लिए, क्योंकि तुझे लगा कि तू शायद एक छोटे सब्सक्राइबर्स वाले बंदे का कंटेंट उठा लेगा, चोरी कर लेगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और अब तक तो लोग तेरे को केवल गोबर जोन से जानते हैं, लेकिन आज के बाद #कंटेंट चोर तेरी हर वीडियो में स्पैम होगा, क्योंकि तेरे पास खुद का कुछ कंटेंट नहीं है। तो #कंटेंट चोर तब तक स्पैम होता रहेगा जब तक तू सॉरी या फिर क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करा देता। और बी अ मैन यार, गलती सब लोग करते हैं, लेकिन तेरी सबसे बड़ी गलती है कि तू उस गलती को ना एक्नॉलेज नहीं करता। तू गलती करता है और उसके बाद तू बचने लग जाता है। तेरे को लगता है लोग भूल जाएंगे, लेकिन ना ही लोग फ्लाइंग बीस्ट वाला केस भूले और इसके बाद द UK07 राइडर का कंटेंट चोरी करने वाला केस, ये तो तेरे साथ जिंदगी भर में जा रहा है। Toli
Bring me bliss that away. What a kiss that away. What a wonderful feeling to feel that away. Tell me where have you been all my life? Oh, hot diggity, compassion to me. It's so good to me. What you feeling me? Hot diggity, Got a lock on us. Engine's been hit. Get us out of here. I'm losing control. At CD Projekt Red, we dedicate ourselves to telling immersive stories. Yet with every new project, we set out to make our games bigger, more complex, deeply engaging. Come on, V. Let's get you home. Cyberpunk 2077 marries exploration of a vast open world with kinetic combat, story-changing player choices, and robust character development, all to bring you into our vision of the dark future. You ever feel like the city doesn't give you a choice? You either burn alive in it, or you never existed at all. The year is 2077. An economic crisis culminating in nuclear conflict has left America in pieces. With most of the continent degenerating into lawless war zones, people from all over have converged on the already overcrowded Night City, one of the world's last great megalopolises. A hub amassing the best in resources and know-how, and home to manufacturers of cutting-edge technologies, Night City continues to offer the promise of a civilized future. What? No, this isn't happening. Oh, but it is. But in the city's streets, a merciless struggle for power rages. Gangs, corporate agents, hustlers, religious cultists, politicians, and all manner of criminals strive to outplay one another. Ordinary people get caught in the crossfire. Looking for justice. In Night City, I seek revenge. Much more feasible here. In this world, consumed by never-ending conflict, sometimes only an outsider will get the job done. Elizabeth tells me you have answers for us. I'm all ears. And that's you, an urban mercenary, a cyber-enhanced gun for hire. You seem to understand each other.
Take this, too. As a mercenary, you swear no allegiance. You've chosen the outlaw life and trust that your abilities will carry you up Night City's ruthless, underground social ladder. Heart of Night City. That's it right there. To thrive as a merc, you need the right combination of gear, skills, and reputation. Dex had a load to say about you. I hope he wasn't overselling. With the money you earn, you can turn yourself into a living weapon, buying guns and enhancements in the hundreds. As you roam the city's streets, you gain the experience you need to upgrade abilities and acquire perks. Combine the right skills and gear to create a gunslinger with inhuman reflexes. A stealthy netrunner with command of all surrounding tech. Or practically anyone in between. In Cyberpunk 2077, you steal a prototype biochip that can set you up for life. Being filthy rich. When its sealed container is ruptured, the only way to prevent the biochip from failing is to slot it into your head. It turns out it contains the digitized soul of Johnny Silverhand, a dead rocker boy with violence on his mind. I need to say there's an actual terrorist in my head, right now. He's out for revenge. Aims to bring down the megacorp that made the chip. Do whatever it takes to stop him, defeat him, gut him. What is in your head can shift the balance of power in Night City. The high and mighty will do anything to lay their hands on it. Told you I'd end you someday. The choices you make will shape your story and determine how events unfold. V, you gotta take him down. That's why we're here. But not everything in Night City is a matter of life and death. Sometimes it's about style, choosing your look, your ride, your pastime, who's at your side. Choosing how you spend your dirty money. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. A kids coding camp is suing critics for speaking out against them. This is a coding camp named White Hat Junior. They're one of India's biggest startups, and they're in hot water. In response to mounting criticism, they're suing one man named Pradeep Punia, I hope I got that name right, for $2.7 million in damages. Okay, they're accusing of defamation, all sorts of stuff, which we're gonna get into. But they say, look, it's not because the guy criticized us, it's because he criticized us unfairly. According to them, legitimate, honest, fact-based criticism is truly welcome. White Hat Junior is the latest of many coding camps offering such a thing, but what makes them different is who their target audience is. Rather than targeting people in continuing education or people who are in their 20s, they're targeting children. When it comes to education, quality teaching is all we expect. But the way of hiring teachers on White Hat just proves it to be yet another smart fraud. Here's one of their Do you ads have a right previous here to give you an experience idea in of the coding? type of No, advertising that they doesn't do. matter. They say But space you must be technology an is the expert number one enough future using career for fancy kids. Your kid can buzzwords learn to code a attract kids on your spaceship trial in classes. just 46 Basically, minutes. White Hat Junior is Start hiring free coding actors and a and space not tech tutors. trial. To be honest, making an app out of drag and drop is not coding. This is an absurd way of looting middle-class aspirations. And that's how White Hat Junior has been successful in convincing so many parents. Literally every review here is so detailed that even the punctuation marks aren't missed. And most of them suggest you to take trial classes. There are tons of recordings of trial classes and they are not even close to real coding. A kid asks the teacher the difference between Java and JavaScript. Just like how a car has nothing to do with a carpet, Java has nothing to do with a JavaScript. But the teacher has a different thing. Another kid asks where do the files saved on cloud storage go. The teacher explains it to be some imaginary space like cloud, and the data is stored in the air. From using Bill Gates to Pichai in their ads, from Elon Musk to Steve Jobs, from randomly naming some stock photos to creating a fictional kid like Wolf Gupta, White Hat has broken all ethics of marketing. This is
is the most expensive firework in the entire world, and it cost me over $160,000. And I also bought a $5,000 firework, a $10,000 one, and this big behemoth right here is a $40,000 firework. And everything here, we spent over $600,000 on this video, and every single firework will be launched. Starting with this one, it costs $1. Chandler, go launch it. It's lighting. That was kind of lame. Here's a $10 firework. Let's see if it's better. Give me. Chandler got so scared. Here's a $50 firework. We're gonna go up to 200 grand. Go. It's on fire, but it's not. I don't like it. Run! Oh. I can't wait till you see the $200,000 firework. I don't know why I'm holding up a 7. A real, retractable, plasma-based lightsaber. The pinnacle of sci-fi tech. And probably one of the most sought-after fictional technologies ever. As you know, we've been developing different lightsabers, or like they're called in Star Wars lore, proto-sabers, for the past 4 years now. From some initial power supply tests that got the fire department called on us, to version 1 using nitinol wire, to version 2 using a tungsten titanium blade hybrid, version 2.1 so we could have a real-life lightsaber duel, which, by the way, was extremely unsafe, to finally our Kylo Ren style lightsaber complete with a 3D printed titanium hilt. A proto-saber, of course, is a lightsaber with an external power pack. Since you know, we don't exactly have D-sized batteries capable of putting out more power than a nuclear power plant, which, by the way, is what you'd need for a lightsaber to function like it does in the movies. Now, in my opinion, what we've made so far are some of the closest representations of lightsabers using real-life technologies. They look like a lightsaber, they sound like a lightsaber, and at temperatures of over 3,000 degrees, they actually cut stuff, like a lightsaber. बस कट के ना क्या क्या है ये हो गया क्या आपका पहला सवाल 1 लाख रुपए के लिए क्या मिथपैट जीतेगा देखो पिछली बार मैं जो भी लेवल्स हैं आपका दूसरा सवाल 2 लाख रुपए के लिए क्या मिथपैट जीतेगा दादाजी मेरे को ना मास्क चाहिए ये बेचारे दादाजी को कुछ हो जाएगा गाइस इस समय में बूढ़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है दादाजी डोंट वरी मैंने मास्क पहन लिया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदा बचोगे वाओ दिस इज सो एपिक देखो दादाजी इस बार ना हम दोनों एक साथ ओह माय गॉड दादाजी का लेग सर्जरी हो गया है कितना खून निकल रहा है क्या दादाजी आज सुबह क्या ब्रेकफास्ट में टोमेटो सॉस खाया देखो अरे 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 दादाजी खुद को लात मार रहे दादाजी अपना पैर क्यों चाट रहे हो आप ऐसा 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 ओहो ओहो दादाजी पिछले जन्म में दादाजी माइकल जैक्सन थे मुझे नहीं समझ में आ रहा कि रास्ता कहाँ से है रास्ता
you all my personal dreams?